Hey guys, this is Anurag and welcome to Geeks 2.0. So today's video is very special because today we are going to discuss about what's the exact salary structure for the turbo candidates and velocity candidates. Basically, mostly people are worried about what is the exact salary because in offer letter there is a mention salary structure with according to the 5.5 LPA and mostly people are expecting there is a 6.5 LPA. So today we are going to discuss about what's the exact salary and बहुत लोग भाई परेशान थे कि ये 5.5 का क्या हो गया एंड ये 1 लाख का बोनस क्या है एंड जब हमें आफ्टर 1 ईयर ही ये 1 लाख मिलेगा बोनस तो फिर सैलरी तो अपनी 5.5 ही हुई। तो जो इतनी चीज़ें हैं पूरी क्लैरिफाई करेंगे। ऑफर लेटर को बिल्कुल ध्यान से रीड आउट एंड उसके बिहाफ पे एक आंसर जो एक ऐसा आंसर निकालेंगे कि इसके बाद अगर कोई भी फ्रेशर भी है अगर वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द टर्बो रोल एंड इट्स प्रिपेयरिंग एट द वेलोसिटी doing is a velocity training, so after watching this video he will be able to understand what the exact salary structure for the turbo candidate। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, एश्योरिटी देता हूँ, after watching this video you will be able to understand what is the exact salary structure of the turbo candidate। So let's start our video without wasting any more time। If you didn't subscribe yet, so please subscribe this channel and like this video। Let's see our offer letter. Basically I am also joined as a Wipro company in turbo role, so I have an offer letter of turbo। So in that offer letter firstly we will discuss about what is the structure table। Now what is the structure table? All we know there is a total fixed cash is 39,767, this is fixed, and other funds will be a 33,175 and health and variable pay will be 2892। I know this is very confusing, otherwise I will also put it down on table also, you can see their table also। So basically what are the target cost per month? That is 45,834 and target cost per year that is 5,50,000। So mostly people are worried about कि भाई यहाँ तो 5.5 लिखा है एंड 5,50,000 अपना पैकेज होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ये टेबल देख लिया, यू सी दैट टेबल, दिस इज टेबल, ऑल थिंग्स आर मेंशनड लाइक व्हाट आर दी योर टोटल फिक्स्ड कैश, व्हाट आर द टोटल फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन, अदर कॉम्पेंसेशन, वेरिएबल पे एंड लास्टली द टारगेट कॉस्ट पे टू कंपनी पर एनम। सो आपने ये चीज यहाँ पे टेबल में आपको दिख रही होगी। Let's discuss about bonus। Basically mostly people are worried about what's the exact funda behind the bonus, so let's understand। I will also put it down the screenshot here, you can read that also। So let's read the bonus by one। So let's go to our board and see। First rate, you shall be eligible to receive a one time cash bonus। means कि भाई one time cash bonus means हमको सिर्फ एक टाइम पे कैश बोनस मिलेगा। means that means when we receive the one time cash bonus, that means हम वो कैश बोनस को एक बार में निकाल सकते हैं या एक बार में रिसीव कर सकते हैं। इस कितना रिसीव कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ 1 लाख। कितना रिसीव कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ 1 लाख। दैट इज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि भाई एक बार में, दैट इज वेरी क्लियर, रिसीव अ वन टाइम कैश बोनस। वन टाइम कैश बोनस मतलब एक बार में हम 1 लाख विड्रॉ कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं या फिर ले सकते हैं। पर इसके आगे लिखता है आफ्टर 1 ईयर, यू कैन सी दैट इन ए स्क्रीनशॉट आल्सो, आफ्टर 1 ईयर। तो इस पे एक नोट कंडीशन डाल देते हैं हम कि आफ्टर 1 ईयर। So after 1 year, that means very clear कि एक साल बाद, after 1 year you shall be eligible to receive a one time cash bonus। That is very clear। one time cash bonus 1 lakh rupees means there is no difference, like most of the people are thinking about कि भाई 1 लाख जो है हमारी सैलरी स्ट्रक्चर में ना जुड़ जाए। मीन्स कि वो सोचते हैं कि दिस ईयर विल बी अवर सैलरी इज 5.5 एंड नेक्स्ट ईयर अवर सैलरी विल बी 6.5। सो जो 1 लाख है वो अपना 6.5 अगले साल में जुड़ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा पैकेज 5.5 है इस ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटिंग, लाइक माय जॉइनिंग वाज ऑन 4 जुलाई 2022। सो आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन, लाइक इन 4 जुलाई 2023, I will be able to dispatch or withdraw these amount at one time cash bonus। means at first एक ही बार में मैं ये निकाल सकता हूँ। तो that is very clear। basically we are read it down this note, जो बेसिकली बोनस का नोट है, हम इसे बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट क्या लिखा है, क्योंकि पीपल आर वेरी कंफ्यूजिंग कि भाई ये स्टेटमेंट क्या दे दी हमें। अब देखते हैं दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एडिशनली आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट द बोनस अमाउंट शैल बी मर्ज्ड विद योर रेगुलर सैलरी स्टैक। अब इसका मतलब क्या है? लोग ये समझते हैं कि भैया जो हमें 1 लाख रुपए जो ये बोनस है, ये बोनस अगले साल हमारा 5.5 पे मिलके 6.5 हो जाएगा और इस साल हमारी जो सैलरी रहेगी, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी रहेगी वो 5.5 ही रहेगी, पर अगले साल जो अपना बोनस मिलके
जो सेकेंड ईयर में सैलरी होगी वो 6.5 होगी। ये पीपल की थिंकिंग होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका वो क्या कहना चाहता है कि विद आफ्टर 1 ईयर, मतलब आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने 4 जुलाई को ज्वाइनिंग करी, 4 जुलाई 2023 को हमारी ज्वाइनिंग मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो मैंने 5.5 के हिसाब से यहाँ पे मैंने अपनी सैलरी स्ट्रक्चर मुझे मिली। एंड आफ्टर 1 ईयर मैंने ये विड्रॉ कर लिया, 1 लाख अमाउंट भी मैंने निकाल लिया कि चलो भैया मैं 5 जुलाई 2023 को 1 साल बाद 1 दिन बाद मैंने इसको पैसा निकाल लिया। नाउ आवर सैलरी, अब जो कैश बोनस था, इस बार जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कैश बोनस नहीं रहेगा, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर ही 6.5 से होगी। सो नाउ आफ्टर 1 ईयर योर सैलरी स्ट्रक्चर विल बी बेस्ड ऑन 6.5 LPA। सो जो आपका 5.5 था वो चीज वेरी क्लियर है कि भैया फर्स्ट ईयर में आपको 5.5 प्लस 1 मिला, वो चीज आपकी पहले ईयर तक थी। लेकिन अब ये जो 1 लाख का कैश बोनस है ये आपकी सैलरी में मर्ज हो जाएगा, तो आपकी दूसरे सेकंड ईयर आपकी सैलरी क्या होगी 6.5। तो दैट इज वेरी क्लियर। अब ये हम देखते हैं कि इसने लिखा है विद योर रेगुलर सैलरी स्टैक्स। रेगुलर सैलरी स्टैक का मतलब यही है कि वो आपकी सैलरी में स्टैक ऐड हो जाएगा। इफेक्टिव फर्स्ट ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट ऑफ द मंथ ऑफ योर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। भाई 4 जुलाई को हमने ज्वाइनिंग करी, 4 जुलाई 2030 को हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन देयर विल बी अ 1 मंथ, जैसे 4 जुलाई हमारा कंप्लीट हो गया, उसी 4 जुलाई 2030 से हमारा सैलरी स्ट्रक्चर 6.5 पे बेस्ड होगा। तो दैट इज वेरी क्लियर। अब हम लेट्स डिस्कस अबाउट other points. So there is a mention the amount will be distributed amongst different existing salary components in accordance with the company policy in the regarded. अब इसका मतलब क्या है भाई कि ऐसा नहीं है, it's not like that कि आपका 6.5 पैकेज है, ठीक। 6.5 पैकेज मींस आपका हुआ क्या कि भैया आपका क्या हुआ, सॉरी डस्टर कौन ढूंढे, तो आपका क्या हुआ कि आपने 6.5 का आपका सेकेंड ईयर में 1 ईयर कंप्लीशन के बाद आपका वो हो गया, पैकेज हो गया, 1 ईयर कंप्लीशन के बाद आपका 6.5 पैकेज हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी सैलरी कितनी थी, सैलरी थी 39,700 अप्रॉक्स। तो अब ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख आपका ऐड हुआ तो वो 1 लाख आपकी सीधे सैलरी इन हैंड सैलरी में इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वही बोला है कि अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या होगा कि वो 6.5 लाख जो 1 लाख आपको एक्स्ट्रा मिला, वो 1 लाख आपके डिवाइड होगा फंड में भी, आपके वेरिएबल पे में भी, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में भी, आपके अदर थिंग्स में भी। मैं यहाँ टेबल दिखा दूंगा। तो वो चीजें इफेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख बाय डिवाइडेड बाय 12 किया और जितना अमाउंट XYZ आया तो मैंने प्लस XYZ कर दिया और ये मेरी आफ्टर 1 ईयर की सैलरी हो गई। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो वही ऑफर लेटर में लिखा हुआ है आप इसमें भी कि भैया जो आपका डिफरेंट सैलरी कंपोनेंट में अकॉर्डिंग विद द कंपनी पॉलिसी इज विल बी मर्ज। तो दैट इज वेरी क्लियर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरीड अबाउट दैट कि भाई हमारी एग्जैक्ट पैकेज क्या है। तो एग्जैक्ट पैकेज भाई आपका कुछ एग्जैक्ट पैकेज आपका 5.5 ही है। एग्जैक्ट पैकेज आपका भाई 5.5 ही है। फिर सैलरी स्ट्रक्चर पे प्लस 1 लाख आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे मिल जाएगा। आप एक बार में वन टाइम में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आफ्टर 1 ईयर योर सैलरी विल बी 6.5। देयर इज नो बोनस, नथिंग happen. There will be a salary structure according to their 6.5 and 1 ईयर से पहले आपकी सैलरी स्ट्रक्चर 5.5 प्लस 1 लाख बोनस है। तो होप यू विल क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड अभी जो मैंने वन थिंग I also mentioned there, let's predicting what's our salary after 1 year. So let's start that topic also. So guys, at last we are discussing about let's predicting what's our salary after our first year. तो हमने ये तो बात कर ली कि after our first 1 year completion हमारी सैलरी स्ट्रक्चर विल बी 6.5. सो प्रेडिक्टिंग अवर सैलरी फर्स्ट ईयर 1 ईयर के बाद, तो भाई अवर सैलरी स्ट्रक्चर विल बी 6.5 LPA मींस 6,50,000. तो कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय 12, द कॉस्ट पर मंथ विल बी 54,166. ठीक, 54,166. So like I am assuming or I am predicting when our salary structure will be a 6.5, so there is a 3,800 approx. This is will be a approx other funds. 3,400 will be a health and other variable pay in hand salary. So after 1 year completion there will be a in hand salary based according to the 6.5 LPA salary structure will be a 46,966 approx. I am assuming approx means it varies on 100, 200, 300 rupees. It may be varies, but approx your salary will be 46,966. And one more bonus tip: after a 1 year completion, all the companies and mostly Wipro company giving an increment of 5 to 10%. Like if we it's based on the ratings, where these ratings are given by the manager. So let's assuming there is a 7% increment in our case.
So 7% increment. So if our salary structure will be affected 7%, like our salary structure is 6.5 and affected 7%. So approx our nearly in hand salary goes to 50,000. So after 1 year completion, here is a big news, here is a good news on whatever for the turbo candidate. After 1 year, your salary structure will be a 6.5, and with plus increment, your in-hand salary would be a 50k, nearly to 50k. One or 100 for 500 rupees, it may be vary, but nearly to 50k. So there will be a very good news for us. After 1 year, there is a good news. There is a huge amount of our fresher as a fresher. So मैंने जैसे कि बताया कि भाई 39,767 अप्रॉक्स नियरली, गलत भी फिगर हो सकता है. दिस इज अवर फर्स्ट ईयर सैलरी बिकॉज क्योंकि हमें 1 लाख कैश बोनस भी मिलेगा एंड आफ्टर 1 ईयर हमारी 6.5 से सैलरी स्ट्रक्चर बनेगी तो हमारी 46,900 60 ये अपने को अप्रॉक्स बनेगा. अगर इंक्रीमेंट 7% लगभग हो गया तो देयर विल बी अवर सैलरी नियरली अबाउट 50,000. So this is all about the salary structure of the Wipro candidate.